Before we begin, I would like to take a moment to express our gratitude to our members and mentors, teachers and mentors who guide us and inspire us. They play an integral role in shaping our path, and we are truly fortunate to have their support. As a token of appreciation, I would like to call Aditya sir to felicitate respected Ashok Devaporoshia sir of the before year. Thank you sir for your support and guidance. Now, I would like to call Rudrik Pandya to felicitate respected Dr. Neha Sharma ma'am. She is the professor in charge of Electronics and Communication Engineering branch. She will be going to our faculty advisor throughout our journey. MTech projects. Thank you ma'am for your support. Ashwini Jain to felicitate respected Dilip Sharma sir. He is the Dean of Student Welfare. Their dedication to our well-being and academic excellence is truly. I would like to call Dilip Sharma sir to say a few words of wisdom. Please sir. हमारी एचओडी भी रही हैं और हमसे सीनियर भी हैं डॉक्टर नेहा मैडम और प्रेजेंट के आईआईटी से पीएचडी है और मेरा भी एकेडमिक कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। इस कारण मुझे ये जो ग्रुप लगा तो ऐसा लगा कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं ये इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें इससे पहले कोऑर्डिनेटर हमारे मेघा बलोची सर थे, अब इसको आगे बढ़ाने का काम मैडम ने लिया है। तो मैं इन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया और आगे इससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग आपको भी मिलेगी और ज़्यादा बाकी डिटेल तो फिर ये लोग बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। शायद ये प्रोग्राम चल रहा है, लास्ट ईयर कुछ एक्टिविटी कम हुई थी पर इनिशियली काफ़ी अच्छा किया और कुछ बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इससे। दिस इज़ वन वे टू कनेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड। हम लोगों की कोशिश भी ये होती है कि आप लोग बाहर क्या चल रहा है आपकी स्ट्रीम में, उसकी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो हम लोग क्लासरूम में जितना हो सकता है उतना दे पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे रास्ते हैं, जैसे ये आपका ग्रुप है, इससे भी आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिलती है जिससे आपके करियर में कुछ हेल्प मिलती है। आपको अपना लाइन बनाने के लिए अपना करियर में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इस तरह के जो ग्रुप है, प्रोग्राम है, वो हेल्प करते हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए और जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए थैंक यू। Thank you for sparing your valuable time to attend this program which is to be conducted by students. They will be guiding you what actually this GDC is. But only two words I would like to say, because there is a time constraint. The students have to go back to their classes. So in short, what first thing what we should remember is that we are living in a global village. है ना? We all know. Now, what is the meaning of this word? Why village? Global we understand. But why we call it a global village? Because as in a village, everybody knows everyone. Everyone is connected to the other person. So we are not isolated. So now the whole world, the whole globe, it has become a village. Each one can be connected to the entire world. So that is why now the latest scenario is that we are living in a global village. So, and we all know that Google has played a very important role in connecting the entire world. So it is the richest platform which has helped in all fields to connect the people, enrich the people, educate the people, and in all things. And since our students came with that platform that they want to form this group and connect all our students of Jain Engineering College so that they can be benefited by the knowledge, and as you all know, this knowledge is needed in future in your campus, in your placements. And I always say to my students that well begun is half done. So if you plan well in the beginning, when you are entering this college in first semester itself, if you decide that where you have to go and what you have to do, then I think half of the work is done there. So rest, the students will be guiding you. My best wishes to them and to you also.
and thanks a lot for giving me this opportunity. Now to felicitate Professor. Now I would like to call Aditya Singh sir, ex-lead of GDG Ujjain, to tell us about the GDG Ujjain. He began this club in our college and took a great initiative. Please sir. बस इवेंट्स and they get much benefits from it. तो this was about Google Cloud, है ना? Google Cloud के अलावा हमारे और भी इवेंट्स हुए, जैसे Android पे एक इवेंट था, ML पे इवेंट था. मतलब तुम जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो CSE में, जितने भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जितने भी फील्ड्स होते हैं, हमने मोर और लेस सबको कवर किया. जैसे सबने एक टर्म तो सुना ही होगा, अगर कोई CSE का है, EC का है, तो भी वेब डेवलपमेंट. ठीक है, पता है लोगों को? चलो यू स्टैंड अप. क्या होता है वेब डेवलपमेंट? हाँ, वेबसाइट डेवलप करना. कोई भी वेबसाइट, जैसे तुम गूगल में कुछ भी टाइप कर रहे हो, गूगल का जो पेज दिखा रहा है, वेब पेज है ना, कोई वेबसाइट मान लो, टेक एग्जांपल car-देखो.com, .com, .in, ये कुछ भी दिखता है ना, ये वेबसाइट की ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ 1 घंटे का क्लास है. ठीक है, तो उस 1 घंटे की क्लास में तुमको नोट्स भी बनाना है, तुमको पढ़ना भी है, अगला क्लास हो जाएगा फिर उसकी भी तैयारी करनी. तो ये सब इवेंट्स इसलिए कॉलेज में होते हैं कि तुमको वो एक्सपर्टीज मिले, तुमको वो एक्सपोजर मिले कि तुम जो क्लास में नहीं कर पा रहे हो और जो घर पे भी नहीं कर पा रहे हो, वो कॉलेज में ऐसा इवेंट फॉर फन कर सको. ठीक है, तो और उसके बाद हमारे अराउंड 8 या 10 सेशंस हुए थे थ्रू आउट द ईयर. उसके बाद एक था जेन AI पे. अभी सबके फ़ोन में AI तो है ही, है ना? जैसा जितने भी नए फ़ोन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसा भी आईफोन रिलीज हुआ 16, उसमें भी एप्पल इंटेलिजेंस है. सैमसंग के फ़ोन आते हैं, उस पर गैलेक्सी AI है. और बाकी जो फ़ोन्स हैं सब में AI तो है ही. एटलीस्ट सबके लैपटॉप पे Co-Pilot या फिर मैकबुक में एप्पल इंटेलिजेंस तो सबके में. ठीक है, तो जेन AI इज द थिंग दैट हेल्प्स यू अ लॉट. आपको कुछ भी हेल्प करना हो, आज के टाइम पे कोई लिखता कुछ नहीं, सब कोई चैट जीपीटी. लोगों को ये नहीं पता है कि अगर चैट जीपीटी से लिख रहे हो तो वो डिटेक्ट भी हो जाता है. ठीक है, इसीलिए हर टाइम चैट जीपीटी से कॉपी करके पेस्ट मत किया करो. यूज ह्यूमनाइजर. ठीक है, अगर तुम बस सिंपली टाइप करोगे ह्यूमनाइज AI तो बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं. जस्ट चैट जीपीटी से कॉपी करो और ह्यूमनाइज करो. उससे अगर तुम कोई भी टेक्स्ट कहीं से कॉपी किए हो तो ह्यूमनाइज हो जाता है वो. नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि यू आर यूजिंग चैट जीपीटी एंड उसे तुम्हारा एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं होता. जैसे बहुत सारे आजकल यूज होते हैं ATS. ठीक है, तो इफ़ यू आर अप्लाइंग समवेयर इन सम बिग कंपनी, ऐसा नहीं है कि HR सीधा तुम्हारा रिज्यूमे देगा, वो पहले ATS से जाता है. अगर ATS का स्कोर तुम्हारा अच्छा है, मतलब तुम्हारे रिज्यूमे में वो सारी चीज़ें जो जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच कर रही हैं, तभी वो चीज़ आगे बढ़ती है. ठीक है, कि तुम समझ में आ रहे हैं कि बस बैठे हो सर? चलो बढ़िया. लेट मी आस्क समथिंग. अभी तक क्या बोला मैं किसी एंड विल लेट यू नो कि कैसा क्या इवेंट्स होने वाले हैं आगे, किस टेक्नोलॉजीज पे आगे इवेंट्स आने वाले हैं. जैसे आई गेस तुम लोगों को अभी तक पता चल गया होगा जेन AI, है ना? तो एक जेन AI का कैंपेन है, तो उसमें भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, है ना? लर्निंग पाथवेज हैं, उसको एक्सप्लोर करो एंड आई थिंक दैट विल हेल्प. ओके, तो दिस वाज माय टाइम. थैंक यू गाइस. On a great level and is very inspiring for us. For the further process, I would like to hand over the mic to Rudrik Pandya, who is the lead of GDG Ujjain Engineering College. Numerous slides. अगली बार जब तुम लोग आओगे तो एज अ टैग जरूरी नहीं सिर्फ एज अ टैग को ही GDG में लिया जाता है. जिन लोगों का मैनेजमेंट फील्ड अच्छा हो, जिनका मार्केटिंग फील्ड अच्छा हो, उन लोगों को भी लिया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको GDG में क्या करना है, तो GDG में आपको बहुत सारी लैब्स होती है जो आपको करनी रहती है. जैसे पिछली साल हमने जेन AI की लैब्स करी थी, क्लाउड कैंपेन करा था, वैसे ही इस साल भी हमारी जो फर्स्ट लैब है वो है जेन AI की लैब. सो ये हमारा ये अगर आप मैप देख सकते हो तो ये जहाँ पर ब्लू मार्क है, यहाँ पर सब जगह GDG के सेशन फैले हुए हैं. और इसमें से एक अपना क्लब भी है जो कि है उज्जैन.
पर मैं ये बताने वाली हूँ कि पूरे हमारा ईयर का विजन क्या रहेगा, हमको क्या क्या करना है। और मैं ये होप करती हूँ कि जो भी बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं वो ये पूरी जर्नी में 1 साल तक हमारे साथ रहें, सारी लैब्स कंप्लीट करें और हम लोग का साथ दें। और कुछ भी दिक्कत आए तो वी आर हियर फॉर यू, वी विल ऑलवेज हेल्प फॉर यू। कोई मुझे बता सकता है कि जब भी टेक वर्ड तुम्हारे माइंड में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज क्या फॉर्म होती है? कोई भी, किसी को नहीं पता? टेक वर्ड का मतलब तो जानते होगे ना? कोडिंग। Anybody want to say something? चलो, तो टैग के अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती है। इसके अंदर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर और भी बहुत सारी चीजें आती है। इसके अंदर हम सिर्फ तुमको लर्न करने तक सीमित नहीं रखेंगे, हम तुम्हारी बाउंड्री सिर्फ लर्न करने तक नहीं रहेगी, तुम्हें उसके बाहर भी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए वो भी तुमको सिखाया जाएगा। और तुमको इतना, अगर तुम लैब सच में अच्छे से सीखते हो तो तुमको पता चल जाएगा कि उसे कैसे करना रहता है, उसे फ्यूचर खुद के प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। So there are various benefits of GPT। अगर अपन कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो अपन उसको बिना बेनिफिट के तो कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। सबसे पहले कनेक्ट, इसके अंदर तुमको बहुत सारे कनेक्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोई बच्चा है, उसको वेब डेवलपमेंट आता है, फिर उसको पीआर यहाँ पर मिल नहीं रही जो उसकी हेल्प कर सके या जो उसको बता सके कि क्या क्या उसके अंदर और भी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर तुम लोग का ये ग्रुप बन गया तो तुमको पता चल जाएगा कि मुझे इससे कॉन्टेक्ट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? इसके अंदर तुम बहुत सारी चीजें लर्न करोगे। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जेएनएआई तो सबसे फर्स्ट अपना वही सेशन रहेगा उसके बारे में। और इसके अंदर तुमको कोई कुछ जानता है? जेमिनी, ठीक है। तो जेमिनी जो कि अभी गूगल ने लॉन्च किया है, एक नया प्लेटफॉर्म। फ्लटर तुम बाद में एंड्रॉइड के लिए यूज करोगे। गूगल क्लाउड इसको और अच्छे से समझने का तुमको मौका मिलेगा जब तुम यहाँ ये लैब और वर्कशॉप अटेंड करोगे। सर जनरेटिव एआई क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पीपल ने यहाँ पर चैटजीपीटी तो यूज किया ही होगा, किया है ना? तो वो भी एक जनरेटिव एआई है। इसका पर्पस होता है तुम लोगों को कुछ भी कंटेंट अगर ढूंढना, जनरेटिव एआई में यही पर्पस होता है कि अगर कुछ तुम सर्च कर रहे हो तो तुमको रिजल्ट ला करके दे देता है। एआई और जनरेटिव एआई में भी डिफरेंस होता है। तो अपन यहाँ पे जेएनएआई के बारे में ही कंसल्ट, पूरा जो भी रहेगा वो जेएनएआई के बारे में ही रहेगा। ये जेएनएआई का स्टडी जैम है, ये हमारा 1 महीने का प्रोग्राम रहेगा। अभी हम तुम लोगों से फॉर्म फिल करवाएंगे, उसके बाद 1 अक्टूबर से तुम्हारा सेशन चालू हो जाएगा और 20 अक्टूबर तक तुमको सारी लैब्स कंप्लीट करनी रहेगी। ये टाइमलाइन है, 20 सितंबर से 23 सितंबर तक जो भी ये फॉर्म जो भी तुमको फॉरवर्ड करवाया जाएगा वो 23 सितंबर तक तुमको फिल करना है। 1 अक्टूबर से तुम्हारा सेशन मतलब तुमको लैब करनी चालू करनी है और 20 अक्टूबर तक सबमिट करनी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे। जो भी लोग लैब्स करते हैं उन्हें स्ट्राइक्स मिलते हैं और वो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं। तुम उनको लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर सकते हो कि तुमने गूगल की लैब करके कुछ अर्न किया है। थैंक यू। तो तुम सब लोगों को एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है? अभी अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो अभी कर लो, ठीक है? ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यू जीमेल अभी क्रिएट करो अपने मोबाइल में सब लोग। टेक आउट योर फोन्स।
कि उनकी और फिर उन लोगों से लैब्स करवाना है। हमारे पास 120 रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए हैं। हमें उम्मीद नहीं थी इतने बच्चे आएंगे, पर आए आप लोग इतने ज़्यादा पैशनेट हैं तो हम अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। तो उसमें से 120 रजिस्ट्रेशन में से 80 बच्चों को लैब्स पूरी करनी है। जो लैब पूरी करेंगे उनको 15 बैच मिलेंगे लैब्स के। तो उसके बाद टी शर्ट, बॉटल्स और ऐसे गिफ्ट भी मिलते हैं। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है और जो आगे आएंगे वो सभी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम इसके लिए गूगल मीट अलग से रखवाएंगे, जो कि आपके कॉलेज के टाइमिंग पे नहीं रहेगी, वो रात को रहेगी 7 to 8 या 8 से 9 ऐसा। हेलो, पहले क्वेश्चन है मेरा, किस किसने